नमस्कार, खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ JVN Dr. Devashish Panigrahi, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we are going to discuss on session number 32 regarding Parada Yogika Dosa. Before proceeding, we should again discuss regarding the classification of Parada Dosa. In previous class, we already discussed the Naisargika Dosa. Broadly, Parada Dosa can be classified into three subtypes: Naisargika, Yogika and Upadika. We already discussed Naisargika Dosa in the previous class, and Naisargika Dosa have again three subtypes: Visa, Banni and Mala. Today we will discuss on Yogika Dosa. Yogiko Nagavangau Dvo To Jadya Admana Kusthado. According to Rasaratna Samuchaya, Yogika means compound. Yoga, compound, Jodna. It is artificial in origin. As previously we discussed, Naisargika Dosa is natural. It may be the inherent property. But here Yogika means compound or it is artificial. Synonym of Yogika Dosa is Vyaparika Dosa. Yogika Dosa are of two types. Number one, Nagaja, contaminated with lead metal. Number two, Bangaja, contaminated with tin metal. After conjunction of Yogika Dosa Yukta Parada, following symptoms can be observed. They are stiffness, Jadya, abdominal distension, Admana, and leprotic skin diseases, that is Kushta. Here in the sloka it is already described by our ancient scholars. योगी को नागभंगो दो, योगी को दो प्रकार का होता है, नागज और भंगज, तो उससे जाड्य, आदमान और कुष्ठदो ये कंडीशंस उत्पन्न होते हैं. सिमिलरिटी विथ नाग एंड भंग. नागभंग क्यों बताया गया है और नागभंग से ऐसा दोष क्यों उत्पन्न होता है? As this yogika or vyaparika dosa caused by contamination with lead and tin, we should know some basic properties of this metal. नाग और भंग के मिलने से ही ये यौगिक दोष होता है और नाग और भंग के जोड़ने से ही ये यौगिक दोष होता है, इसलिए इसका नाम यौगिक दोष है. जोड़ करने से नाग और भंग मिनरल से मिलके भी आ सकता है और बाहर भी इसको जोड़ा जा सकता है आर्टिफिशियल. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ भंग और टीन इज 232 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.3, and melting point of naga or lead is 326 degree centigrade, specific gravity 11.3. हम यहाँ पर इसलिए इसको बात कर रहे हैं क्योंकि नाग और भंग को हम मिलाएंगे. कैसे मिलाएंगे? और मिलाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं करना है. तो पहले हम बेसिक ये चीज़ दोनों जानते हैं कि ये कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है. After converting the metal to molten state, they looks just similar to mercury. जैसे ही हम भंग को, नाग को, टीन और लेड को मेल्ट कर देंगे, मेल्ट होने के बाद मोल्टन स्टेट में जो इसका स्वरूप है ये मर्क्यूरी जैसा ही दिखेगा. हम इसको मेल्ट क्यों करेंगे? क्योंकि मर्क्यूरी हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, इस वजह से इनको मेल्ट करने के बाद ये ऐसे ही दिखता है. एंड रस और मर्क्यूरी हैज स्पेशल प्रॉपर्टीज. क्या है? रसनात् सर्वधातूनां रस इत्यभिधीयते. इट मिक्सेस विथ ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट आयरन, निकेल एटसेट्रा एंड फॉर्म्स अमलगम. तो पारद का एक विशेष प्रकृति है कि आयरन और निकेल मेटल को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स के साथ ये बहुत अच्छे तरह से अमलगम बना लेता है, मिक्स हो जाता है
और दूसरे शब्द में कहें तो पारद सभी को डाइजेस्ट कर लेता है और वैसे ही लिक्विड स्वरूप में रहता है। तो क्योंकि नाग और बंग बहुत कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाते हैं और ऐसे ही दिखने वाले होते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग आसपास होता है, तो इसलिए इसको मिलाने में आसान भी होता है। यहाँ पर आप लोगों को सुगमता के लिए नाग और बंग यानी कि लेड और टीन को रखा गया है फिगर में। दिस इज टीन मेटल, इट लुक्स लाइक शाइनी कलर, and this is lead. It is something darker, slightly darker than tin. But after a molten state, these two look similar, and here you can compare it with mercury. These two in molten conditions looks similar with mercury, and mercury will digest all these metals and prepare amalgam. So there will be no problem in mixing. व्यापारिक दोष, why? क्यों व्यापारिक दोष बोला गया है इसका सिनेमा? As it is known fact that metals such as tin and lead are cheaper metal and can easily converted to molten state comparatively in a lower temperature, and its appearance is similar to high cost mercury in liquid state. क्योंकि नाग और बंग, लेड और टिन सस्ता होता है, बहुत कम टेम्परेचर में इनको मेल्ट किया जा सकता है, और मरकरी का डिमांड ज़्यादा होता है, कॉस्ट हाई होता है, इसलिए वहाँ अच्छी तरह से इसको मिलाया जा सकता है। फॉर योर कंपैरिजन, नाउअडेज द मार्केट वैल्यू ऑफ टिन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1500 rupees per kg. Lead costs approximately 900 rupees per kg, whereas mercury market value approximately 9000 per kg. यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये रेट फिक्स नहीं होता है, एवरीडे मेटल का ट्रेडिंग होता है और एवरीडे ये चेंज भी होता है। आज के समय में मरकरी को बिल में कोई नहीं देगा, यानी कि ऑफिशियली एक्चुअल बिल बना के कोई नहीं देना चाहता है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मरकरी का एक्सप्लोरेशन बंद करने के लिए, मरकरी का यूज बंद करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने डिसीजन लिया है। अराउंड 140 कंट्री उसमें सिग्नेचर किए हैं, भारत भी उसमें से कंट्री है। तो इसलिए आप दुकान में जाके मांगेंगे कि मुझे मरकरी दो और बिल भी दो, तो वो पक्का बिल आपको नहीं देगा। इसलिए रेट ये जो मैं बता रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेट रेट है, वेरी कर सकता है। दिस नॉलेज इज यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर एडल्टरेशन एंड ट्रेडर्स कॉमनली प्रैक्टिस दिस फॉर हायर मार्जिन एंड प्रॉफिट। क्योंकि व्यापारिक लोग ज्यादा धन कमाने के लिए नाग और बंग मिश्रित पारद को बेचते थे, इसी वजह से इसका नाम व्यापारिक दोष पड़ा। एक दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है व्यापारिक दोष का, जरूरी नहीं कि हमेशा व्यापारी लोग ही ज्यादा पैसा कमाने के लिए इसको मिलाते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है, ड्यूरिंग ट्रांसम्यूटेशन फ्रॉम लोअर और बेस मेटल्स लाइक टीन एंड लेड टू नोबल मेटल गोल्ड और अदर प्रैक्टिसेस प्रोसेस, many a times when the researcher failed, then they want to sell the intermediate mercurial compound in the market to recover at least some cost, and the same mercury may be run in the trading supply chain and produce harmful effects known as यौगिक दोष due to व्यापारी का इंटरेस्ट। क्या होता है, जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पारद से सोना बनाया जा सकता था। पुराने समय में ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चलता था, और इस प्रोसेस में जो ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस होता है, हम हल्का या सस्ती धातु यानी कि नागभंग से सोना चांदी बनाने की कोशिश किया जाता था। जब ये सिद्धि करने में सफलता उसको प्राप्ति नहीं होती थी, वो फेल हो जाते थे, तो उनके पास कुछ नहीं बचता था। तो वो सोचते थे कि चलो ये जो
हमें सोना तो बना नहीं, चांदी तो बना नहीं, लेकिन जो बचा हुआ मटेरियल है ये पारद है, जिसमें ऑलरेडी हमने पारद में नाग और बंग, लेड और टीन मिला दिए थे सोना बनाने के लिए, चांदी बनाने के लिए, लेकिन वो बन नहीं पाया, तो इसको बेच देते हैं, कुछ तो धन मिल जाएगा। तो मार्केट में जब उसको बेच देते थे तो इसमें व्यापारी का कोई हाथ नहीं होता था, लेकिन व्यापारी को पारद के नाम पे वो बेचते थे और व्यापारी इसको आगे पारद से के नाम से ही मार्केट सप्लाई चेन में भेज देता था। और क्योंकि पारद में नाग और भंग मिला हुआ होता है, इस वजह से नागयुक्त और भंगयुक्त योगी को दोष उत्पन्न होता है। तो ये ड्यू टू व्यापारी को इंटरेस्ट होता है, तो इसमें व्यापारी का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इस वजह से इसका नाम भी व्यापारिक दोष पड़ गया। ये ऑप्शन नंबर या एस्पेक्ट नंबर 2 है। यौगिक दोष अकॉर्डिंग टू आनंद कंद, आनंद कंद have described 3 types of yogika dosha. They are Visa, Naga and Banga. Visa already described in Naisargika dosha, and here again Ananda Kanda included Visa dosha in Yogika. Naga and Banga is already in Yogika dosha. In today's session number 32, we discussed on Yogika or Vyaparika dosha, its subtypes, similarities with Naga and Banga, why it is known as Vyaparika dosha, etc. MCQ related with today's topic: which of the following symptom can be seen in Yogika dosha? Jadya, Admana, Kushtha or all? Synonyms of Yogika dosha is Naisargika dosha, Vyaparika dosha, Upadhika dosha or Mahadosha. Subjective question: write short notes on Yogika dosha. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, then mention in comment box. I will resolve it. Thank you.